Today we are going to have another topic related with this one, and I hope so. This topic is again very much interesting, and you people like it. And the last time we have started talking about the features. That was the last topic we have discussed about that. And now I'm going to start the session which is related with the dimensionality reduction technique. So here we have a topic to go for dimensionality reduction. So let's move on with this one. So as I talked about the feature and the dimensionality, that is a very important part once we talk about the machine learning. As we talk about, the machine learning is totally based on a data sets, and the data set is somewhat related to a kind of a feature of a something. What is exactly is the data? Data is nothing but somewhat a feature and some sort of a dimension of something. Just taking an example, you have a certain table in front of you. एक टेबल है आपके सामने, you have a table in front of you. If I just talk about what are the features of the table, so you will definitely reply in the way that the table consists of its height, its length, its width. Somebody will be telling about its structure, quality. Somebody will be telling about the color combinations. So all these things are somewhat related with what? Related with the dimensionality and the features of this one. So whatever the data we collect, आप किसी भी डायरेक्शन में किसी भी जगह पर आप काम करना शुरू कीजिए, मशीन लर्निंग की ज़रूरत होती है डेटा से, और डेटा के अपने खुद की फीचर्स होते हैं, बिकॉज डेटा इज़ नथिंग बट फीचर एक्सट्रैक्शन ऑफ समथिंग. किसी भी चीज़ का अपने फीचर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पूरे दिन का आपने टेम्परेचर लिया हुआ है, सो यू आर सिंपली टॉकिंग अबाउट द वेदर एंड द वेदर हैज़ अ फीचर एज टेम्परेचर. Simply you are talking about the weather today and moisture is a feature of weather. भाई moisture भी अपने आप में एक weather का feature हो गया. Similarly, as long as we go for, we'll find out a number of the dimensions are there which may be related with the data, and the target is simply related with that कि whatever the thing we are talking about that should move on. ठीक है, तो अब उन सब के लिए ज़रूरी होता है कि हमें किसी भी डेटा का डायमेंशन और उसके फीचर्स के बारे में समझ में आना चाहिए. सो आई होप सो this particular topic and the kind of a thing I'm going to initialize is okay for all. Done. If you feel any doubt, if you feel that a topic, see, जब तक important ये है, जब तक कि हमें topic नहीं clear होगा, we would not be really able to give the right justification with its content. Content के साथ justification नहीं. So the topic is related with the dimensionality or the feature reduction. हम लोग dimensionality और feature reduction के बारे में बात कर रहे हैं. That is what the target today. And as we are talking about this target, so here, if my slides are keep on moving, let me know please. Are these moving? My slides are moving? स्लाइड तो मूव नहीं कर रही सर अभी. पहली स्लाइड ही है. पहली स्लाइड है, इट्स नॉट मूविंग. सेकंड पेज नहीं आया. अभी नहीं आया. अब आ गया. आ गया. Now this is one. So fine. We are talking about the second slide. If you go for this is basically a dimensionality reduction. So just see this figure and you would be able to understand. You would be able to understand how the dimensionality comes up. You see here in this first figure, there's a figure here, and in this figure we see here we have a certain kind of a shape. अगर इस shape का मैं data pick up करता हूँ तो I have basically two things. So this shape can be converted into the two kind of a thing. अगर इसमें dimensionality reduction का function use करता हूँ, so this shape can be identified only from its top view, making it a circle of it. Similarly the second one also. And once I'm just taking its side view, it can be represented as in a y dimension as a straight line. Fine. तो same अगर एक cylindrical shape है, तो cylindrical shape is basically having a two specific feature, its top view and its side view. So depending upon my requirement, depending upon my need, if I'm doing it and I'm using this dimensionality reduction, so this can be the better one option. I hope so now it's clear. सर वो ऑप्शन बेटर क्यों होगा ऊपर वाला?
नहीं, आई एम नॉट सेइंग एनीवन इज द बेटर, इट टोटली डिपेंड अपॉन फॉर व्हाट पर्पस आई एम डूइंग इट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, जिस पर्पस के लिए मैं कर रहा हूँ वो ही फीचर मेरे काम का है ना, फॉर व्हाट अच्छा। पर्टिकुलर, हाँ व्हाट पर्टिकुलर रीजन आई एम डूइंग इट, दैट ओनली द फीचर इज ऑफ माई यूज़, केवल वही फीचर मेरे यूज़ का रहेगा, ठीक है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपली इफ अ सिलेंड्रिकल शेप इज देयर, द सिलेंड्रिकल शेप may have a one feature which is related with the dimension. It means the vertical direction may be represented as a straight line, and from looking from the top view it looks like a circle. So what is more important for me for my analysis? It may have a straight line feature from side view or maybe a top view. ज़रूरत पड़ने पर जो फीचर की मुझे ज़रूरत होगी, आई विल कीप ओनली दैट फीचर, दैट इज कॉल्ड एज अ फीचर रिडक्शन टेक्निक. सो रादर देन टेकिंग अ 3-dimensional figure, I can use a 2-dimensional figure into the form of a circle or into the form of a one straight line depending upon my requirement. This is the one thing. Is that clear? Okay, sir. Just a minute. So now coming on slide back. So here we go for slideshow, and let me know whether this is properly moving or not. Now it's properly moving. Yes. Fine, that's okay. So here we are doing this one and looking for that this particular cylinder has a 2-dimensional feature. Going for more, what is the need of a feature selection, why we are looking for it, and what are the things we should go for. So important aspect, if you go here and you find out all these arrows, so first of all you go for remove irrelevant feature, the feature which is not of your use, you can remove it all. So if suppose taking an example, एक बैरियर है जिस पे लोग जंप करते हैं, जो हर्डल रेस होती है, उस हर्डल रेस में अगर बैरियर की अगर हम बात करते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज व्हाट, इट्स हाइट. सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, हाइट है ना. तो हाइट इज अ प्रोमिनेंट फीचर, प्रिंसिपल फीचर आई नीड फॉर, कि कितनी हाइट पे मुझे हर्डल लगाना है. द सेकेंड फीचर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस हर्डल, सो द थिकनेस ऑफ द मटेरियल आई एम यूजिंग वुड हैव एनी सॉर्ट ऑफ वैल्यू ऑफ इट. वही जो पाइप में यूज़ कर रहा हूँ उस पाइप की थिकनेस कितनी है हर्डल रेस के लिए, जो मैं उस पर लगाने वाला हूँ हर्डल के लिए, डज इट मैटर फॉर मी? No. ऑब्वियसली इट डजंट मैटर. तो जब वो मैटर नहीं करेगा तो इन दैट सिचुएशन this feature can be removed on. Similarly, increase the performance of our model. Obviously, less number of the feature, we can concentrate more on that. अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमें फॉर एन एग्जाम्पल अगर हमें दो स्पीसीज को पहचानना है, जैसे ह्यूमंस को पहचानना है और एनिमल्स को पहचानना है, सो व्हाट काइंड ऑफ अ फीचर वी आर लुकिंग फॉर. हम उनके सबसे पहले फीचर पे देख सकते हैं. एक फीचर ये भी है कि वेदर दे आर रनिंग ऑन 4 feet और यूजिंग अ 2 feet. So that is what the prominent feature. Rather than taking on all the features, we are not going for a shape of our eyes. Eyes की shape पर नहीं जा रहे. So number of the features may be there, but just only identification of a single purpose. एक single purpose को identify करना है कि वो animal है या human है. We do not have any business with the finding out the color of our eyes and something else. पर लेकिन अगर हम यही human इंडिया को belong करता है या outside the India है, so the color of eyes is a matter. इस तरीके के बहुत सारे फीचर्स किसी भी डेटा सेट के साथ हो सकते हैं. एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज देयर, वी नीड टू आइडेंटिफाई सर्टेन फीचर एंड वी नीड टू रिड्यूस द फीचर. दैट इज व्हाट द डायमेंशनलिटी रिडक्शन. सो इंपॉर्टेंस फॉर परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगा. मेक ट्रेनिंग फास्टर, सिखाना आसान हो जाएगा. ऐसा आप लोग करते भी हैं, किसी चीज़ को सिखाते हो कहते हैं ना जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस, केवल एक ही इसी पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए एंड रिमूव द अदर थिंग्स, बाकी चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए. सो व्हेन यू आर आस्किंग समवन टू कॉन्सेंट्रेट ओनली वन थिंग, तो इसका मतलब क्या है कि आपने बाकी के उससे रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स एंड फीचर्स थे वो सारे के सारे डाउन कर दिए, डिमिनिश कर दिए, रिड्यूस कर दिए, एंड यू आर पुटिंग मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑन दैट, सो द ट्रेनिंग बिकम्स फास्टर. डेली लाइफ में भी हम सब यही करते हैं. हम सबका यही है कि जैसे सपोज कीजिए आपने एक मोबाइल फ़ोन खरीदने जाना है. सो नाउ इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ परचेज ऑफ अ मोबाइल फ़ोन, योर प्रिंसिपल आस्पेक्ट ऑफ फीचर्स में बी डिफरेंट. अब सबके अपने अपने प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स ऑफ फीचर अलग अलग हो सकते हैं. किसी का कोई फीचर हो सकता है इंपॉर्टेंट, किसी के लिए कोई फीचर इंपॉर्टेंट हो सकता है. सो इट टोटली डिपेंड अपॉन फॉर विच पर्टिकुलर फीचर यू आर लुकिंग फॉर, किस फीचर पे आप बात कर रहे हैं, है ना. ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. अब मेरे लिए हो सकता है कि मोबाइल का कैमरा प्रोमिनेंट हो, और आपके लिए हो सकता है कि मोबाइल का स्ट्रक्चर शेप इंपॉर्टेंट हो. किसी के लिए सिर्फ ब्रांड मैटर करता है,
ये ब्रांड है तो ये. So that is what we are looking for, a prominent feature of it. That's what a target. So here it makes training faster. It becomes easier. It's easy for us. Simply गोइंग फॉर ईजी टू बिल्ड. अब आप एक मॉडल क्रिएट करना चाहते हो, कम फीचर्स की मदद से करोगे, अच्छा मॉडल क्रिएट हो जाएगा, लोगों को समझ में भी अच्छे से आ पाएगा जिसको आप समझाना चाहते हो. एंड ईजी टू डिबग. अगर उसमें किसी भी तरीके का कोई फॉल्ट आया है, किसी भी तरीके का एरर आया है, तो इट इज़ ईजी टू यू टू फाइंड आउट. सो आई होप सो फीचर सेलेक्शंस एंड द फीचर रिडक्शन से रिलेटेड मैटर आपको समझ में आ गया होगा. एंड वी डू इट डेली लाइफ में भी, हम इसी तरीके से प्रोसेस करते हैं. वी ओनली गो अकॉर्डिंग टू इट. कि जब कभी हमें किसी चीज़ के लिए कुछ सीखना है, कुछ समझना है, कुछ जानना है, कुछ खरीदना है, पहचानना है, सो वी ऑलवेज एक्सट्रैक्ट द फीचर. समटाइम वी आर गोइंग टू परचेज क्लोथ्स इन अ मार्केट, सो कलर इज़ अ मैटर. Only looking for a color, we need a black color shirt. Then after we go for the second thing, what kind of a stuff it is, and then we go for another things. But initially we only look for its black color. And the somewhat we are looking only for, no, we'll go definitely on a one brand. Allen Solly में जाना है, वहीं पे जाके लेना है, because what is a good thing? कपड़ा अच्छा है, सेल अच्छा है. So it depends on us, and we definitely create a model according to it. It happens. So I hope so. बहुत सारे किसी भी सिस्टम के अंदर जिसका भी डेटा आपने कलेक्ट किया हुआ है, उस कलेक्ट करने के बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं. एंड अमंग ऑल दोज फीचर्स कुछ प्रिंसिपल फीचर्स होंगे जो आपको ज़रूरत होगी. तो हमेशा ये कहा जाता है, रिड्यूस अननेसेसरी फीचर्स फ्रॉम द डेटा सेट फ्रॉम द सिस्टम. दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट. सो कमिंग अप दिस पॉइंट एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये थ्योरेटिकली है, दिस इज़ फॉर यू टू गेट एन हेल्प वंस यू वांट टू रीड अप. The number of input features, variables or column present in a data set known as a dimensionality, and the process to reduce these feature is called as a dimensionality reduction. साफ साफ लिखा है, जब कभी आप डेटा सेट लेते हैं तो डेटा सेट के साथ में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं. और फीचर्स किस फॉर्म में होते हैं अगर आपने डेटा लिखा. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आपके को पढ़ाने वाले 4 टीचर हैं, तो 4 टीचर में सबसे पहले डॉक्टर पंकज हो गए, डॉक्टर अलका हो गए, डॉक्टर राहुल हो गए, एंड फिर मिस्टर राहुल विश्नोई हो गए. चारों के यहाँ पर आपका लिखा हुआ है. अब चारों के अलग अलग पैटर्न और फीचर्स पे क्या, फर्स्ट फीचर दे दिया लुक्स, कैसे दिखते हैं ये, तो इज इट अ मैटर फॉर यू, इज इट अ प्रिंसिपल फीचर फॉर यू? नहीं है बिल्कुल आपका. सेकंड आ गया उनका क्वालिफिकेशन, इट मैटर्स फॉर यू. थर्ड आ गया उनका एक्सपीरियंस, इट मैटर्स फॉर यू. फोर्थ आ गया उनका मैथडोलॉजी, इट मैटर्स फॉर यू, है ना. फिफ्थ आ गया कि वो कितने एग्जाम्पल्स लेते हैं, कितने टाइप के टॉपिक्स लेते हैं. तो अब आप सिर्फ डॉक्टर पंकज के अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर पंकज के आगे नंबर ऑफ़ कॉलम्स बनते चले जाएंगे. उन कॉलम्स में से आप मेरी क्लास क्यों लेना चाहते हैं? अब अगर मैं मशीन लर्निंग एक मॉडल क्रिएट करना चाहूँ तो आप मेरी क्लास क्यों लेना चाहते हैं? इट माइट बी बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस, इट माइट बी बिकॉज ऑफ माई टीचिंग मैथडोलॉजी, it might be because of my education, it might be because of my research paper contribution to the society, कितना रिसर्च का काम किया हुआ है मैंने. It's all depends on a principal feature extraction. I expect कि अब मैं थोड़ा इसको समझा पाया. तो डेटा जब भी होता है उसमें कॉलम्स बने हुए होते हैं, तो इस तरीके से उनको कॉलम बोल लीजिए, फीचर्स बोल लीजिए, वेरिएबल्स बोल लीजिए. तो जब हम इनको रिड्यूस करते हैं तो इसको बोलते हैं डायमेंशनलिटी रिडक्शन. इट्स अ वेरी वेरी सिंपल एंड वंडरफुल प्रोसेस. और रॉ डेटा से पहले हम डायमेंशनलिटी रिडक्शन करके प्रिंसिपल फीचर्स को फाइंड आउट करते हैं. A dataset contains a huge number of input features in various cases, which makes the predictive modeling task more complicated because it is a very difficult to visualize to make the prediction of for training dataset with a high number of features. For such cases, dimensionality reduction are required to use. जैसे लास्ट टाइम मैंने एक एग्जांपल कार का लिया था. अगर आप एक कार को पहचानना चाहते हैं कि वो कार है, ऑटो नहीं है या बस नहीं है, तो सिर्फ एक फीचर या 2 फीचर ही आपकी आंखों के सामने आते हैं. आप जाके चेक नहीं करते हैं कार में एयर बैग होगा, ऑटो में एयर बैग नहीं होगा. ये भी तो एक फीचर है, बट यू डोंट गो फॉर दैट. आप उस फीचर के नहीं जानते, यानी कि आपके ब्रेन ने ऑटोमेटिकली एक फीचर ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर दिया. दूसरा, आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप इग्नोर करते हैं कार के केस में और ऑटो के केस में पहचानने में, कार को और बस को पहचानने के केस में. ये सारे फीचर्स हैं. आप जाके उसका गियर बॉक्स चेक नहीं करते हैं कि कार का गियर सिस्टम और बस का गियर सिस्टम अलग है या ऑटो का गियर सिस्टम अलग है. यू नेवर चेक इट. आप इसको चेक नहीं करते हैं. सो यू इटसेल्फ, योर ब्रेन इटसेल्फ डू दिस डायमेंशनलिटी रिडक्शन. तो इतने सारे फीचर्स को, कार के इतने फीचर्स हैं, उसके टायर भी है, टायर का साइज़ भी है, बोनट का साइज़ भी है, हेडलैम्प भी है, आगे का AC ग्रिल भी है,
उसका बोनेट का स्ट्रक्चर भी है, बम्पर का स्ट्रक्चर भी है। तो इतने फीचर्स हैं, अगर आप लिखने बैठ जाएंगे तो शायद आप 4-5 लोग बैठेंगे, सो पीपल विल बी सजेस्टिंग टू यू, वो सजेस्ट करते जाएंगे और अच्छी खासी लिस्ट तैयार हो जाएगी। बट टू आइडेंटिफाई अ कार एज अ कार यू डू नॉट नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज फीचर्स, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब 2-4 फीचर्स से आप बता सकते हो इट इज़ अ कार। गॉट इट? So third point, the dimensionality reduction technique can be defined as it is a way of converting the higher dimension data set into the lesser dimension data set. तो ये definitions हो गई इनके बारे में। It is commonly used in the field that deal with the higher dimensional data such as speech recognition, signal processing, bioinformatics. It can also be used for the data visualization, noise reduction, cluster analysis. तो ये जो हाई डायमेंशनल डेटा होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्पीच के केस में। अगर मैं आपसे बात करते करते अगर अपनी स्पीच के कुछ फीचर्स मिस कर दूं, मेरा स्पीड, मेरा पेस, मेरा कंटेंट, मेरे वर्बल एसेंट, फोनेटिक्स, बहुत सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो जाएगा। तो स्पीच रिकॉग्निशन में आपने देखा होगा ना, जो कभी आप गूगल असिस्टेंट्स को कुछ बोलते हैं, या आप अपने घर में आपका स्मार्ट टीवी है तो उससे अगर आप स्मार्ट टीवी से कुछ बोलते हैं, अगर थोड़ा सा भी पीछे बैकग्राउंड में नॉइज़ है, साउंड है, यार आपने क्लियर नहीं बोला, तो वो कुछ और प्रिडिक्ट कर लेता है और आपको आंसर देता है। So in that case you need each and every feature of a voice to be clear. तो that is somewhat, तो कहीं कहीं हमें हाई डायमेंशनलिटी डेटा की जरूरत पड़ती है बट नॉट एवरीवेयर। तो जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ हम इसको रिड्यूस करेंगे। So here we have a few common techniques on which we can understand what kind of a techniques we have. So among them if you see, that is, so dimensionality reduction techniques basically divided into the two part, फीचर सेलेक्शन एंड डायमेंशनलिटी रिडक्शन। एक तरफ हम फीचर्स को सेलेक्ट करते हैं और दूसरी तरफ क्या करते हैं, साथ के साथ इनकी डायमेंशनलिटी को रिड्यूस करते हैं। फीचर सेलेक्शंस में मिसिंग वैल्यू रेशियोज़ होते हैं, लो वेरिएंस फिल्टर्स का ध्यान दिया जाता है, हाई कोरिलेशन फिल्टर्स दिए जाते हैं, रैंडम फॉरेस्ट, ये कुछ टेक्निक्स हैं स्टैंडर्ड। बैकवर्ड फीचर एक्सट्रैक्शन यूज़ किया जाता है, फॉरवर्ड फीचर एक्सलेक्शन यूज़ किया जाता है। मतलब मिसिंग वैल्यू, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपके यहाँ सिंपल से बोलूँ HE, can you complete this sentence? HE, I'm spelling out something. मैंने बोला सिर्फ HE. So any one of you can complete this. What it can be? It can be anything HEN. HEN. So your answer is HEN. Very good. And the second? H is helium. It can be helium. Very good. So what you are doing? Very good. Very good. What you are doing? You are simply doing nothing but on the basis of HE you are predicting the values. अब आप यहाँ पर मिसिंग वैल्यूज़ के हिसाब से प्रिडिक्शंस क्रिएट कर रहे हैं। HE का मतलब आपने हैन भी कह दिया, हीलियम भी हो गया, हैलो भी हो गया, है ना। तो बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पर हैं जो HE के साथ में क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन अगर इसको मैंने मोर प्रिसाइज कर दिया, HEL कर दिया, देन HEL. Hello. And Hello or help. Help. That's so nice. So here this missing value ratio matters, that whether you are having a complete feature or not. So that is the ratio we have to maintain. If suppose the right answer is only the hello, so we have to be much precise about that कि only HEL will not help. HEL जैसी आएगा वो हेल्प को भी 50% चला जाएगा और हेलो को भी 50% चला जाएगा। सो वी हैव टू मेंटेन द डेटा अकॉर्डिंग टू व्हाट फीचर वी कैन लूज ऑन। तो HELL में मैं एक O फीचर को छोड़ सकता हूँ, लेकिन अगर HELLO में मैं HEL से काम चलाने की कोशिश करूँ, दैट वोंट वर्क, वो काम नहीं करेगा। सो सिंपली द थिंग इज हियर, सो इन दिस केस वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट कि हाउ वी आर मैनेजिंग द थिंग्स। तो यहाँ पर मिसिंग वैल्यू रेशियो, लो वेरिएंस फिल्टर यूज़ किए जाते हैं। लो वेरिएंस फिल्टर्स का मतलब होता है सच काइंड ऑफ अ फिल्टर्स विच शोज अ वेरिएशन इन द क्वांटिटी इज़ वेरी लो। मतलब कोई चीज़ जब तक सिमिलैरिटी की तरफ बढ़ रही है तब तक तो हम उसको प्रिडिक्ट कर पाते हैं, लेकिन जैसे वेरिएशन इंडेक्स हाई हो जाता है वैसे हम उसको प्रिडिक्ट करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। जैसे कोई पर्सन अगर एक ही फैमिली को बिलोंग करता, वी कैन टेल ओके अच्छा ये इनकी फैमिली में ही से कोई बच्चा होगा, उनकी फैमिली का बच्चा लगता है, क्योंकि वेरिएंस पार्ट जो है वो कम है। तो एक वेरिएंस मैटर होता है कि फ्रॉम वन फीचर टू अनदर फीचर हाउ मच इट इज़ वेरीड,
एक फीचर से दूसरे फीचर तक वेरिएशन कितना ज़्यादा है, दैट इज़। तो एक इस टाइप के फिल्टर्स यूज़ किए जाते हैं फीचर सिलेक्शंस के लिए। हाई कोरिलेशन फिल्टर, एक फीचर में और दूसरे फीचर्स में कितना हाई कोरिलेशन है। अगर मैं दो पेन दिखाता हूँ तो दो पेन्स के बीच में हाई कोरिलेशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कोरिलेशन फिल्टर है कि दोनों की शेप सिलेंड्रिकल है, फर्स्ट कोरिलेशन। सेकंड कोरिलेशन आता है कि उनका जो स्ट्रक्चर है वो आगे से पॉइंटेड है, एक फीचर है, मुझे देख के समझ में आता है कि पेन हो सकता है। तो कोई भी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आगे से पॉइंटेड होगा तो फर्स्ट थिंग कम्स इन अ माइंड, इट कैन बी अ पेन। तो कोरिलेशन, फीचर्स में कोरिलेशन क्या है, तो पेन के फीचर में क्या कोरिलेशन है, वो हम हाई कोरिलेशन, तो हम इसमें क्या करते हैं, फिल्टर करके उन कोरिलेशंस को निकाल लेते हैं जो मैच करते हैं। सिंपली अनदर टेक्निक इज कॉल्ड एज अ रैंडम फॉरेस्ट, इट विल कम इन लेटर ऑन, ये आपके पूरे सिलेबस में अच्छे से आएगा। रैंडम फॉरेस्ट में भी ट्राई टू अगेन, दिस इज ऑल्सो कोरिलेशन बेस्ड, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं कि किसके अकरेंस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सिंपली बैकवर्ड फीचर एक्सट्रैक्शन एंड द फॉरवर्ड फीचर एक्सट्रैक्शन। पुराना लिंक प्रीवियस फीचर से क्या लिंक है, जैसे HELLO, तो HELLO में पुराने से क्या लिंक है, अगर LLO है तो E वर्ड नहीं है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, E वर्ड है तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बैकवर्ड एंड द फॉरवर्ड फीचर सिलेक्शन, तो इस तरीके से कुछ वैल्यूज़ होती हैं, मिसिंग वैल्यू, लो वेरिएंस, हाई कोरिलेशन, रैंडम फॉरेस्ट, बैकवर्ड फीचर एक्सट्रैक्शन, फॉरवर्ड फीचर एक्सट्रैक्शन, ऑन द basis of that feature can be selected. Now the thing is here, if we are looking for reduction then we must go for component factor based and projection based. तो यहाँ पे भी कुछ टेक्निक्स दी गई हैं जो यूज़ की जाती हैं, फैक्टर एनालिसिस की जाती है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस की जाती है, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट एनालिसिस की जाती है, और यहाँ पर इनके कुछ टेक्निक्स हैं। तो आपका जो सिलेबस कंटेंट है उस पूरे सिलेबस कंटेंट के अंदर डायमेंशनलिटी रिडक्शन का इंट्रोडक्शन है, और प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस ये PCA आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो वी आर फोकसिंग हियर ऑन दिस PCA मेथड। लेकिन हाँ, जनरल नॉलेज में ये ज़रूर पता होना चाहिए कि फीचर्स को सेलेक्ट करने के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। तो ये दीज आर द वेरी कॉमन मेथड्स, सो वन मस्ट नो। आई होप टिल नाउ इट्स ओके। नाउ there is a one terminology also used in machine learning, the curse of dimensionality. Handling the high dimensional data is very difficult in practice, commonly known as a curse of dimensionality. तो कई बार ये वर्ड आएगा यूज़ में, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी। तो यू कैन जस्ट एक्सप्लेन दिस वन, कि जब कभी भी हमारा जो डेटा होता है वो ज़्यादा हाई डायमेंशनल डेटा जब हम हैंडल कर रहे होते हैं तो इसको बोलते हैं कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी। अतः एक तरीके से नुकसान झेल रहे हैं हम हाई डायमेंशनलिटी होने का, but we cannot reduce it, we have to go for it. So if the dimensionality of the input data set increases, any machine learning algorithm and model become more complex. अब ये ध्यान रखिए, जितनी डायमेंशनलिटी आप बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक रेस्टोरेंट है और एक रेस्टोरेंट में आने वाला कस्टमर केवल आके बैठ के चला जाएगा या एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ बिल बना के जाएगा। ये मॉडल अगर हमने क्रिएट किया और इस मॉडल पर हम लोगों ने ये चेक करने की कोशिश की कि हमारा रेस्टोरेंट चलेगा या नहीं चलेगा, तो उस सिचुएशन में कस्टमर के बहुत सारे फीचर्स हमें देखने पड़ेंगे। ये देखना पड़ेगा जब कस्टमर डोर पे एंटर करता है वो कार से आता है या किसी टू व्हीलर से आता है। कस्टमर के क्लोथिंग स्टैंडर्ड को देखना पड़ेगा, किसके साथ है, कस्टमर अकेला आता है या फैमिली के साथ आता है, 2-4 लोगों के साथ आता है, ये देखना पड़ेगा। कस्टमर अंदर आने के बाद में आके इसका जो स्टाइल है, वेदर वो स्मोक करता है या नहीं करता है, इस पर भी मैटर करेगा। वो ड्रिंक करता है या नहीं करता है, अगर वो ड्रिंक करता है तो हो सकता है कि अच्छा खासा बिल बनेगा। तो ऐसे इतने सारे फीचर्स हो सकते हैं कस्टमर के साथ एसोसिएटेड होते हुए, जिनसे ये पता लगाया जा सकता है कि ये जो कस्टमर है हमारे रेस्टोरेंट में आके बैठा है वो कस्टमर बिल अमाउंट कितना पे करेगा। सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ हाई डायमेंशनलिटी ऑफ डेटा सेट। तो वहाँ ज़रूरत पड़ती है हमें इनको सॉल्व करने की। As the number of feature increases, the number of sample also gets increases proportionally, and the chance of overfitting also increases. अब फीचर्स बढ़ेंगे तो फीचर्स बढ़ने के साथ में सैम्पल्स भी बढ़ जाएंगे, आउटपुट सैम्पल्स जो लेंगे हम उसके चेक करेंगे, जो प्रोबेबिलिटी आउटकम आएंगे वो भी चेंज होंगे। इन सिचुएशन में ओवरऑल मॉडल जो होता है, मॉडल जो होते हैं वो फिट मॉडल होता है या ओवरफिट होता है या अंडर फिट होता है। ओवरफिट होने का मतलब होता है कि एक्सेसिव आउटकम्स आ जाते हैं और अनप्रिडिक्टेबल फॉर्म में चला जाता है, वो ओवर गैसिंग हो जाती है कि ऐसा है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो जब मल्टीपल आउटकम्स देता है इसको ओवर फिटिंग कहते हैं। सो इफ द मशीन लर्निंग मॉडल इज ट्रेन्ड ऑन हाई डायमेंशनल डेटा, इट बिकम्स ओवर फिटेड एंड रिजल्ट इन पुअर परफॉर्मेंस, और थोड़ी परफॉर्मेंस उसकी खराब हो जाएगी। हैंस इट इज़ ऑफन रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फीचर। तो इसीलिए प्रेफर किया जाता है नंबर ऑफ फीचर्स को रिड्यूस करना।
तो एक आंसर हो सकता है ये 4 पॉइंट का कि कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी इज़ अ रीज़न जिसकी वजह से हमें फीचर्स को रिड्यूस करना होता है। अब बात करते हैं, अगर आपको बेनिफिट्स की बात करते हैं, अगर आपने डायमेंशनलिटी रिडक्शन किया तो क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे। सम बेनिफिट्स ऑफ अप्लाइंग डायमेंशनलिटी रिडक्शन इज द टेक्निक टू गिवन डेटा सेट इज गिवन बिलो। कौन कौन से हैं? बाय रिड्यूसिंग द डायमेंशन ऑफ अ फीचर द स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर द डेटा सेट ऑल्सो गेट रिड्यूस्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, अगर आपने नंबर ऑफ कॉलम्स कम कर दिए, फीचर्स कम कर दिए, तो डेटा को स्टोर करने की जगह कम हो गई। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट। लेस कंप्यूटेशनल टेनिंग, कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो जाएंगी। डायमेंशन ऑफ द फीचर डेटा सेट, विजुलाइजेशन ऑफ डेटा, उसको विजुलाइज करना आसान हो जाएगा, देखना आसान हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ यू हैव अ एक्स वैल्यू एंड वाई वैल्यू, कैन यू प्लॉट अ ग्राफ इन बिटवीन दीज टू? एक्स वैल्यू और वाई वैल्यूज में अगर आपका है तो कैन यू प्लॉट अ ग्राफ? यस सर। वेरी इजी, Yes, sir. वेरी वेरी इजी। भाई एक क्वाड्रेंट बनाइए, एक्स का वैल्यू रखते जाइए, वाई का रखते जाइए। इफ आई से आई नीड अ ग्राफ बिटवीन एक्स एंड वाई जेड, देन यू से यस इट इज पॉसिबल बट बिकम्स अ लिटिल टफ। क्या करना पड़ेगा? एक्स वाई जेड 3 डायमेंशनल स्पेस में हमें बनाना पड़ेगा। डन। सो सी व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इंक्रीजिंग डायमेंशन, वी आर इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। सो हेयर और प्लस विजुलाइजेशन इफेक्ट्स आ जाएंगे। एक स्क्वायर को बनाना और अगर मैं आपसे कहूँ एक क्यूब को बनाना ऑन पेपर, इट्स टफ। सिमिलरली इफ द शेप्स आर चेंजिंग मोर रैपिडली देन डेफिनेटली द विजुलाइजेशन में इफेक्ट। तो इसलिए विजुलाइजेशन पार्ट भी इफेक्टेड होता है। इट रिमूव्स द रिडंडेंट फीचर बाय टेकिंग केयर ऑफ द मल्टीकोलिनियरिटी। अगर आपके रिडंडेंट फीचर हैं, फालतू के फीचर्स हैं जो होल्ड ऑन होके आ रहे हैं, तो आपको ये बेनिफिट भी मिलता है। फ्यू डिसएडवांटेजेस आर ऑल्सो देयर। देर आर ऑल्सो सम डिसएडवांटेजेस ऑफ अप्लाइंग द डायमेंशनलिटी। वो क्या है? सम डेटा में बी लॉस ड्यू टू द डायमेंशनलिटी रिडक्शन। हो सकता है कि जब आप इसको रिड्यूस कर रहे हो, पूरा का पूरा कॉलम रिड्यूस कर रहे हो सकता है कोई एक ऐसा प्रोमिनेंट फैक्टर हो जो पूरा का पूरा डिसीजन चेंज कर सकता हो। सो देयर इज अ चांस। तो कुछ डेटा आपका ऐसा हो सकता है जो इंपॉर्टेंट हो और काम में आए। इन द PCA डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक समटाइम्स द प्रिंसिपल कंपोनेंट रिक्वायर्ड टू कंसिडर आर अननोन। और कई बार ये भी पता नहीं होता हमें कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर हम जो प्रिंसिपल कंपोनेंट चूज कर रहे हैं वो वास्तव में वही प्रिंसिपल कंपोनेंट है, कोई समथिंग एल्स इज देयर। दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो वॉट यू आर चूजिंग फॉर अ प्रिंसिपल कंपोनेंट, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट। तो आप लोग एग्जाम्पल ले भी सकते हैं, सोच भी सकते हैं कि किसी भी चीज़ को चूज़ करते वक्त आप सबके प्रिंसिपल कंपोनेंट अलग अलग हो सकते हैं, सबके डिफरेंट हो सकते हैं, एंड द आंसर विल बी डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ दैट। जैसे एग्जाम्पल लिया कि सपोज दैट आप अपने आप में खुद एक मशीन है और एक में मशीन को बेस्ट मोबाइल फ़ोन एक सर्टेन सेगमेंट में 30,000 या 40,000 की कैटेगरी में एक बेस्ट मोबाइल फ़ोन आपसे कहता हूँ, बताइए। तो आप एक एग्जांपल लें कि जैसे आप खुद एक मशीन है और मैंने आपको और ट्रेन किए हुए हैं, तो आपका आंसर क्या हो सकता है? उसकी रैम और इंटरनल मेमोरी देखेंगे और उसका राइट, रैम इंटरनल मेमोरी। एनीवन एल्स? Anyone else? So this is a one trained model and this trained model will be working on the RAM and internal memory. तो फीचर्स में से उसने 2 फीचर्स पिक किए आपने, एक रैम और उसकी इंटरनल मेमोरी को पिक कर लिया। इफ somebody else is doing then कोई और अगर करता है तो बताइए क्या कर सकते हैं?
या सॉरी मेरा शायद नेटवर्क चला गया था, इट वॉज अ पार्ट. सो सी, सो द वन पार्ट इज देयर, ओनली वी आर लुकिंग फॉर व्हाट, रैम और उसका इंटरनल मेमोरी. एनीवन एल्स हु थिंक्स ऑन कि अगर आप मशीन है और आप एक के सामने मोबाइल फोन्स हैं, पूरे फीचर्स हैं, सो व्हाट एंड व्हाट आर द मेजर पार्ट ऑफ विच प्रिंसिपल यू विल वर्क ऑन, क्या उठाएंगे? फाइन. तो हो सकता है कि यू आर पिकिंग अप द फर्स्ट एज ओनली इंटरनल मेमोरी एंड द रैम, एंड रेस्ट may think on that what is basically a CPU, and the second may think on like what basically the clock hertz. So on the basis of that, what is the speed I'm getting, whether it is 3.2 or whether I'm just getting this one. So the principal feature, अगर आपने CPU की स्पीड को छोड़ दिया, उसको आपने छोड़ दिया, तो आपने कितना ही अच्छा रैम क्यों नहीं लिया हो, कितने इंटरनल मेमोरी क्यों नहीं लिया हो, ओबियसली जैसे ही आप उस सिस्टम को यूज़ करना स्टार्ट करेंगे इट विल हैंग डाउन, वो हैंग हो जाएगा. तो CPU का जो क्लॉक पल्स रेट है वो भी मैटर करता है कि हाउ मच क्विक इट इज़. सो इन दैट सिचुएशन अगेन द थिंग्स कम कि व्हाट शुड बी द प्रिंसिपल कंपोनेंट फीचर. तो ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम हो जाती है कि जो हम प्रिंसिपल कंपोनेंट फीचर चूज़ करते हैं कई बार वो भी अपने आप में एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है. तो दैट इज़ व्हाट द गुड थिंग. नाउ coming on this one. So here we have few common techniques of the dimensionality reduction, in which we have only the one as a part of our syllabus, which is the principal component analysis. So we'll go for it, and rest we have for your knowledge purpose कि just only the one is there. No, we have another also. Backward elimination is there, forward selection is there, score comparison is there, missing value ratio is there, low variance filter, high correlation filter, random forest, factor analysis and auto encoder. ये सारे के सारे हैं, but here we are only concentrating on a principal component analysis. So coming on directly principal component analysis. Principal component analysis is a statistical process, converts the observation of correlated feature into a set of linearly uncorrelated features with the help of a orthogonal transformation. क्या किया जा रहा है? ये एक statistical process होता है, मैथमेटिक्स यूज़ की जाती है, जिसमें हम क्या करते हैं, कन्वर्ट्स अ ऑब्जर्वेशन ऑफ कोरिलेटेड फीचर इनटू अ सेट ऑफ लीनियरली अनकोरिलेटेड फीचर विद द हेल्प ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन. These new transform features are called as a principal component. It is one of the popular tool that is used for exploratory of the data analysis and predictive modeling. तो किया क्या, जितने भी कोरिलेटेड फीचर्स होते हैं ऑब्जर्व किए कि सारे के सारे जितने भी कोरिलेटेड फीचर्स हैं, अब हमें क्या करना है, फीचर्स को रिड्यूस करना है. इसका मतलब ये है कि सपोज कीजिए यू आर चूजिंग योर टीचर एंड यू आर चूजिंग योर टीचर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस एंड द टीचिंग मैथडोलॉजी. अब एक्सपीरियंस अगर अच्छा है तो टीचिंग मैथडोलॉजी भी अच्छी होगी, क्योंकि अगर 15-16 साल 17 साल से अगर कोई पढ़ा रहा है तो टीचिंग मैथडोलॉजी के अच्छे होने के चांसेस हैं. सो टीचिंग एक्सपीरियंस एज वेल एज द टीचिंग मैथडोलॉजी इज द कोरिलेटेड फीचर. इसका हमने एक सेट बना दिया. नेक्स्ट, अपीयरेंस लुक ऑफ अ टीचर, इट इज अनकोरिलेटेड फीचर. अब ये बिल्कुल सिंपल है. टीचिंग एक्सपीरियंस एंड टीचिंग मैथडोलॉजी इज अ कोरिलेटेड फीचर, एंड लुक्स ऑफ अ टीचर, दिखता कैसे है, अपीयरेंस क्या है टीचर का, दिखने का कैसा है, ये एक अनकोरिलेटेड फीचर है. तो अब इन दोनों के बीच में हम बेसिकली एक मैथमेटिकल टूल होता है ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, वो यूज़ किया जाता है इस टाइप की फीचर्स को पिक करके, एंड वी गेट अ न्यू ट्रांसफॉर्म रिलेशन. So the principal feature is identified on the basis of that. PCA works by considering the variance of each attribute because its high attribute shows the good split between the classes and hence it reduces dimensionality. तो इसमें हमारा टारगेट ही होता है कि and when we are working it on, it must have a high attribute of thing. Some real world application of the PCA, real world application of the PCA are the image processing, मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम, जहाँ पर आपका ये IDMB जो रेटिंग दिखाता है उसमें इमेज प्रोसेसिंग, मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम, ऑप्टिमाइजिंग द पावर एलोकेशन ऑफ ए वेरियो कम्युनिकेशन चैनल. तो यहाँ पर आपको ये दिखा देता है कि जिससे आप एक प्रिंसिपल फीचर के बेसिस पे, जैसे मूवीज़ दिखाई जा रही हैं तो एक सर्टेन फीचर कैरेक्टर के बेसिस पे कि रिव्यूअर्स रेटिंग क्या है, बस अब रिव्यूअर्स रेटिंग जो हो गई वो प्रिंसिपल कंपोनेंट फीचर हो गया, वो पीसी एनालिसिस का पार्ट हो गया. अब उसी से आपको दिखा देगा दीज आर द गुड मूवीज. दैट्स एन एग्जाम्पल. सो यू सी हियर वन एग्जाम्पल. Here we have a 3-dimensional data, and the 3-dimensional data we have a 3 dimension. One is the top side view and the another side view is here.
So among them, the PC1, the PC2 can be taken as it is the principal component length and the principal component breadth is taken. So depending upon my utility and my use, I am using only two. कि एक rectangular shape मुझे ये है. So that is what the thing जो हम PC एनालिसिस के अंदर करते हैं, क्योंकि हो सकता है इस पूरे के पूरे बॉक्स का सरफेस एरिया में मुझे कोई चीज़ इसके ऊपर रखनी हो. यानी अगर मैं एक टेबल के बारे में बात करूँगा तो टेबल की हाइट एक ऐसा फीचर है जिसको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ, लेकिन उसकी लेंथ और ब्रेड्थ ये दो ही मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हो गए. तो दैट इज़ अनदर थिंग. तो अब आपने जब देखा, जब यहाँ तक हमने बात कर ली कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस हम लोग करते हैं, वी गो फॉर डेटा सिलेक्शन प्रोसेस. टारगेट डेटा होता है, वी सी हियर इफ़ यू गो फॉर हियर वी हैव अ कंप्लीट डेटा. एक रॉ डेटा है, रॉ डेटा के हम नेट प्री प्रोसेसिंग एंड क्लीनिंग करते हैं, फालतू का डेटा हटाते हैं. यहाँ पर आप फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और फीचर्स को सेलेक्ट करते हैं, उनका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं अपने तरीके से, एंड फाइनली जिस पैटर्न में आपको वो डेटा चाहिए होता है उसको इवेल्युएट कर लेते हैं. दैट इज़ अ बेसिकली अ कंप्लीट प्रोसेस. तो अगर कोई पूछता है कि हाउ द डेटा इज़ रेडी फॉर अ मशीन लर्निंग ट्रेनिंग, अगर डेटा मशीन लर्निंग ट्रेनिंग के लिए कैसे अवेलेबल होगा, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोसेस. दैट्स इट. So here we have few more things related with the principal component analysis, and we have a certain kind of a thing on the which we can work on. Mathematically हम कैसे काम करते हैं, डायमेंशनलिटी फाइंड आउट करते हैं, यानी कि फीचर्स एंड वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कोरिलेशंस फाइंड आउट करते हैं, ऑर्थोगोनल्स फाइंड आउट करते हैं. इट डिफाइंस दैट वेरिएबल आर कोरिलेटेड टू ईच अदर. तो अगर एक दूसरे से वो कोरिलेटेड नहीं है तो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे. फिर हम उनके ईगन वेक्टर्स यानी कि इंपॉर्टेंट पैरामीटर वेक्टर्स निकालते हैं और फिर उनके बीच में एक कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालते हैं. प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में हमारा जो बेसिक काम है वो सारा का सारा है ऑर्थोगोनल फीचर्स को निकाल के फिर न्यू ट्रांसफॉर्म वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं. स्टेप्स क्या हैं, अगर हमसे कोई पूछता है कि इफ सपोज वी आर गोइंग फॉर पीसी एल्गोरिथम, वो हाउ वी कैन गो फॉर. सबसे पहले गेटिंग द डेटा सेट रिसीव कीजिए, प्रेजेंटिंग द डेटा सेट इनटू द स्ट्रक्चर. जिस फॉर्म में आपको वो डेटा रखना है उस फॉर्म में, अगर आपको रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में रखना है तो रोज़ एंड कॉलम्स में रखिए, कंप्लीट रोज़ में रखना है तो रोज़ में रखिए, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑर्डर के हिसाब से जैसे रखना है वैसे रखिए. देन थर्ड पॉइंट वी स्टैंडर्डाइज द डेटा स्टैंडर्डाइज करते हैं हम लोग. इसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स को हम आगे रखते हैं, जो लेस इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं उनको बाद में रखते हैं. दैट इज़ अ वन प्रोसेस वी गो फॉर. फिर कोवेरियंस, जैसे अभी हमने बात किया था, कोवेरियंस कैलकुलेट करते हैं, उनकी इंपॉर्टेंट ईगन वैल्यूज़ एंड ईगन फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं, उन ईगन वैल्यूज़ एंड ईगन फैक्टर्स को हम सॉर्ट आउट करते हैं, एंड फाइनली हम उसके बेसिस पे प्रिंसिपल कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं. तो इफ़ समबडी आस्क्ड टू यू कि व्हाट आर द स्टेप फॉर पीसी एल्गोरिथम, सो हियर वी हैव द स्टेप्स ऑफ अ पीसी एल्गोरिथम. सो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर विजन. इमेज प्रोसेसिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है. डेटा माइनिंग में यूज़ किया जाता है, फाइनेंस में यूज़ किया जाता है, साइकोलॉजी में यूज़ किया जाता है. सो आई होप सो this particular topic is well clear to everyone, and if it is clear, PCA principal component analysis, उसके steps क्या होते हैं, उसके बेसिकली एल्गोरिथम किस तरीके से यूज़ की जाती है, कौन कौन से पैरामीटर्स पे काम किया जाता है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस क्या होता है, कैसे डेटा वेरिएंस करता है, क्या प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस. आई होप सो ऑल दिस क्लियर. इफ़ एनीथिंग इज़ देयर विच यू फाइंड इन अ डाउट, प्लीज़ आस्क मी. So this is all about like your first unit. We have already gone through up to the PCA analysis. If anyone has any doubt, please may ask. पूछ सकते हैं इसमें अगर कोई डाउट है किसी तरीके का. It's clear PCA तक? Yes, sir. That's nice. सिंपल है, बस एल्गोरिथमिक स्टेप्स हैं, और मैथमेटिक्स जो इसके बिहाइंड की, दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, वो आपको नहीं करना है. सिंपली आपको ओवरव्यू देना है कि व्हाट इज़ PCA, PCA के साथ में किस तरीके के स्टेप्स हैं, कौन कौन से पार्ट कंपोनेंट हैं, किस तरीके से आप प्रिंसिपल कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करते हो. तो इन शॉर्ट अगर आप किसी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, समबडी यू वांट टू मेक देम ओके कि भाई PCA क्या होता है, तो आप इन शॉर्ट ये समझ लीजिए कि नंबर ऑफ़ फीचर्स आपके पास में हैं, उन फीचर्स का आप सेगमेंटेशन करते हैं. सेगमेंटेशन ऐसे करते हैं कि जो फीचर्स कोरिलेटेड हैं एक दूसरे से, उन फीचर्स को आप एक साथ रखते हैं, और जो फीचर्स अनकोरिलेटेड हैं यानी कि कम्प्लीटली एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं,
प्लेन अलग अलग है, ये एक अलग प्लेन पर है, वो एक अलग प्लेन पर है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा टीचर का एजुकेशन और टीचर का लुक, ये दो फीचर्स हैं टीचर्स के कि भाई टीचर एक डिसेंट दिखना चाहिए, एक फीचर है टीचर का, लेकिन उसकी एजुकेशन और उसके दिखने का तरीका ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। कि सपोज़ कीजिए मैं अभी यहाँ पर इस तरीके से ना पढ़ा के आपको हो सकता है एक टी शर्ट पहन के पढ़ा रहा हूँ या हुडी पहन के पढ़ा रहा हूँ, सो दैट इज़ अ वन थिंग, बट रियली इट मैटर्स, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। तो मुझे डिसाइड करते हो कि मुझसे पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, ये प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस पर डिपेंड करेगा। और प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में मुझे आपको कोरिलेटेड फीचर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, और जो कोरिलेटेड फीचर्स होंगे वो कोरिलेटेड फीचर्स क्या हैं, वो कोरिलेटेड फीचर्स होंगे वो जिनसे आपका बेसिकली मेजर ऑब्जेक्टिव फुलफिल होना है। और वो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, वो मेजर ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है मेरा टीचिंग मैथडोलॉजी, उसके लिए इंपॉर्टेंट है मेरा एक्सपीरियंस, सो दैट वॉट एवर आई एम टीचिंग एंड हाउ आई एम टीचिंग दैट्स इंपॉर्टेंट। So this is what basically the principal component analysis. I expect this is all okay. The data component and notes are available with you. You can go for. So अगर हम पूरी के पूरे यहाँ पर यूनिट को समराइज़ करें, मैं एक बार शॉर्ट में यूनिट समराइज़ कर देता हूँ, एक बार ओपन करके कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या समझा है। Right. So in your syllabus we go for here I suppose the first topic is related with the machine learning technique. सबसे पहला आपका था मशीन लर्निंग होता क्या है, मशीन लर्निंग की टेक्निक के बारे में हमने पढ़ा था। एंड देन आफ्टर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, इट इज़ MDS 113 या वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वैलिडेशन टेक्निक। अगर आपने सपोज कीजिए कोई डेटा लिया हुआ, उस डेटा को किस तरीके से आप वैलिडेट कर पाएंगे, वो आपका सेकंड था। थर्ड में था आपका फीचर रिडक्शन एंड डायमेंशनलिटी रिडक्शन का इंट्रोडक्शन। सो वी हैव गॉन फॉर फीचर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरीके से लिखे जाते हैं, कैसे उनको रिड्यूस किया जाता है। और नेक्स्ट था आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। वो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस हमने यहाँ पर समझी। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट नंबर 1 एंड वी आर मूविंग टू द यूनिट नंबर 2 एंड लेट्स स्टार्ट विद अ लिटिल idea of the first topic, which is the clustering. So let's start with this clustering. It's again very much interesting and I hope so this clustering process will be very much clear in a short while to you. बहुत जल्दी और थोड़े में समझ में आ जाएगा. So coming up with this clustering, and rather than having a such of all theoretical concept of clustering, directly coming to important point. You see here I'm talking about the clustering. So clustering is basically grouping of unlabeled data. बड़ी सीधी सी बात है, जब आपके पास में डेटा है और उस डेटा की लेवलिंग नहीं है आपके पास, आपको नहीं पता। इफ़ यू सी ऑन योर टेबल, अगर आप अपनी टेबल पर देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी टेबल के ऊपर दिखाई देंगी। पेपर्स हैं, फाइल्स है, पेन है, माउस है, और आपके पास में कुछ और डिफरेंट टाइप के आइटम्स भी होंगे, आपका स्पेक भी रखा होगा। तो व्हेन नंबर ऑफ द थिंग्स आर अवेलेबल देयर, और आपने किसी एक ऐसे बच्चे को बोल दिया या किसी नॉर्मल आदमी को बोल दिया कि भाई इनको सबको सेग्रीगेट करके रख दो, तो उस पूरे को वो उनके फीचर्स के बेसिस पर, जो पेन जैसे दिख रहे होंगे उनको एक तरफ कर देगा, पेपर्स जैसे दिख रहे होंगे उनको एक तरफ कर देगा, फाइल जैसे दिख रही होंगे वो एक तरफ कर देगा। तो ये जब हम एक बहुत सारे बंच ऑफ डेटा में से डेटा को ग्रुप करते हैं on the basis of their features, similar feature, then we call it as a clustering. तो clustering का याद रखिए, ये एक अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग टेक्निक है, जिस मशीन लर्निंग टेक्निक के अंदर हम डेटा को अलग अलग सेगमेंट में उनके फीचर्स के बेसिस पे ग्रुपिंग करते हैं। तो एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास में कुछ फ्रूट्स थे जिनमें कुछ एप्पल्स थे, कुछ पीस थे और कुछ हमारे पास में स्ट्रॉबेरीज थी। तो अगर ये प्रोसेस हम इसको अप्लाई कर पाते हैं, इसमें सारे एप्पल्स एक तरफ हो जाएं, सारी पीस एक तरफ हो जाएं, उसके बाद में चेरीज़ ये स्ट्रॉबेरीज एक तरफ हो जाएं, तो हम इसको बोलेंगे कि यहाँ पर हमने क्लस्टरिंग किया। सिमिलरली इफ़ यू सी हियर वी हैव फ्यू पीपल्स, कुछ लोग हैं हमारे पास, लेकिन उन लोगों को अगर उनकी हाइट के हिसाब से अगर हम उनको ग्रुप कर पाते हैं, देन वी आर सेइंग दैट वी आर डूइंग इट क्लस्टरिंग। तो दिस इज़ बेसिकली अ क्लस्टरिंग प्रोसेस। तो क्लस्टरिंग एक अपने आप में एक ऐसी टेक्निक है जो बहुत जगह यूज़ की जाती है। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लस्टरिंग, आपने देखा होगा मार्केट सेगमेंटेशन में, स्टैटिस्टिकल डेटा में यूज़ की जाती है, सोशल नेटवर्क में यूज़ की जाती है,
इमेज सेगमेंटेशन यूज़ की जाती है, और एनॉमली डिटेक्शन, जब कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर भी यूज़ की जाती है। तो क्लस्टरिंग अपने आप में एक वो चीज़ है जहाँ पर आप चीज़ों को सिर्फ ग्रुप करते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन कई बार पूछा था मिस्टर फरत ने कि अनसुपरवाइज जो मशीन लर्निंग होती है वो क्या होती है, कैसे पता करते हैं। तो मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर बहुत सारी पत्तियाँ मैं आपको यहाँ पे ला के दे दूँ, लीव्स, ट्रीज़ की लीव्स ला के दे दूँ सामने से तोड़ के, तो यू आर एबल टू सेग्रीगेट दैम, यू आर एबल टू ग्रुप दैम, बट यू आर नॉट एबल टू नेम दैम। आप उनका नाम नहीं बता सकते, लेकिन आप सबको सेगमेंट करके दे देंगे। तो ऐसे ही होता है, कई बार कोई चीज़ के रेट ज़्यादा हैं, किसी चीज़ के रेट कम है, किसी की प्रॉपर्टी अच्छी है, किसी की प्रॉपर्टी ख़राब है, कोई प्रॉपर्टी अच्छे से राइज कर रहा है, किसी का कॉमोडिटी अच्छे से राइज कर रहा है। सो ऑल दिस कम्स टू द मार्केट सेगमेंटेशन। तो मार्केट का जब हम सेगमेंटेशन करते हैं, ये प्रोडक्टिविटी है, ये सर्विस है, ये मैन्युफैक्चरिंग है, सब चीज़ों के नाम देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब ग्रुपिंग कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। मैथमेटिक्स में तो यूज़ होता ही है ये। स्टैटिस्टिकल डेटा हम जब यूज़ कर रहे होते हैं तो बहुत जगह हमारे काम आता है। बच्चे ग्रुपिंग करना सीखते हैं, जब पढ़ना शुरू करते हैं तो वो पहली स्टार्टिंग यहीं से करते हैं, ग्रुपिंग करना आते हैं। 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, नो मैटर इट इज़ 33 और 93, इट इज़ अ 2 डिजिट नंबर। ठीक है, ऐसा अगर इनकम्स में और सैलरीज़ में भी होता है कि 7 डिजिट सैलरी। अब 7 डिजिट सैलरी स्टार्ट तो कहाँ से हो गई? 7 डिजिट तो पहली 00 से भी स्टार्ट हो गई है ना, और 7 डिजिट 999 पे भी जाके ख़त्म होती है, बट इट्स अ 7 डिजिट सैलरी। सेगमेंटेशन हो गया। सो इमेज सेगमेंटेशन इमेज के लिए यूज़ किया जाता है। ये अलग अलग पार्ट ऑफ इमेज है, जब मेडिकल इमेजिंग की जाती है तो वहाँ काम आता है। और एनॉमली, कहीं भी कुछ अलग हो रहा है, कुछ डिफरेंट है, कुछ ख़राब है, जहाँ पे किसी भी तरीके की विसंगतियाँ हैं कोई, तो वहाँ पर एनॉमली डिटेक्शन टेक्निक यूज़ की जाती है। दिस इज़ ऑल द क्लस्टरिंग टेक्निक। तो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट होगा वो हम क्लस्टरिंग टेक्निक के बारे में बात करेंगे। और क्लस्टरिंग टेक्निक में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है एक फ़ीचर से दूसरे फीचर तक पहुंचने के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक फ़ीचर से जब दूसरे फीचर तक हम पहुंचते हैं तो इम्पॉर्टेंट होता है उनके फ़ीचर्स के बीच में, जो भी उनके फ़ीचर्स की हम बात कर रहे हैं, उन फीचर्स के बीच में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि हम कोरिलेशन क्रिएट करें। तो अब यहाँ पर एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ में मैं यहाँ पे पूरा आज का सेशन एंड अप करूँगा। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, सपोज़ कीजिए ये मेरा शर्ट का जो कलर आपको दिखाई दे रहा है और ठीक बैकग्राउंड में कर्टेन का कलर दिखाई दे रहा है। दोनों कलर एक ही कैटेगरी में आते हैं लेकिन दोनों अलग हैं, दैट इज़ विजिबल। अब ये जो कलर है ये इस कलर से कहीं ना कहीं डिस्टिंक्ट है, ये हमारी आंखें पता कर पा रही हैं। लेकिन अगर मशीन को ये पता करना हो तो मशीन क्या करेगा? मशीन अपना एक कैमरा सेंसर यूज़ करेगा और जो वेवलेंथ इससे टकरा के बाहर आ रही है और जो वेवलेंथ इससे टकरा के बाहर आ रही है, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को कैलकुलेट करेगा। यानी कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के सिमिलर है या एक चीज़ दूसरी चीज़ से अलग है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उन दोनों के आने वाले आउटकम और फीचर के बीच में कितना गैप है। और यही गैप मदद करता है मशीन्स को और हमें ये समझने में कि ये एक चीज़ दूसरी चीज़ से अलग है। जैसे एग्जांपल के तौर पर फिर से मैं एग्जांपल लेता हूँ कि ये दो पेन हैं और दोनों पेन एक दूसरे से अलग हैं, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको बता रहा है। अगर मैं एग्जैक्टली आपसे पूछूं कि क्या बता रहा है, कि कैसे आप कह सकते हैं कि दोनों पेन अलग हैं, साफ दिखाई दे रहा है कि ये दोनों पेन एक से नहीं है, क्लियरली पता है। व्हाट इज़ दैट? वो चीज़ क्या है जो आपको बता रही है कि दोनों पेन एक दूसरे से अलग है? कलर और डिजाइन। वेरी गुड, पहला आंसर आया कलर। यानी कि आपकी आईज इन कलर वेवलेंथ्स के बीच के डिफरेंस को समझ पा रही हैं। योर आईज आर कैपेबल, जिनको कलर ब्लाइंडनेस होती है उनके लिए दोनों एक से लगेंगे, कलर का तो कोई डिफरेंस नहीं है, हाँ मोटा और पतला पेन जरूर है, वो ये कहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इसकी ग्रुपिंग करेंगे तो हम इसको एक ग्रुप में नहीं रखेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। लेकिन इफ़ सपोज आई आस्क यू कि अगर मुझे इनके दो ग्रुप बनाने हैं तो दो ग्रुप आप किसके बनाएंगे? इन दोनों के दो ग्रुप बनाना पसंद करेंगे या इन दोनों के दो ग्रुप बनाना पसंद करेंगे? आई होप सो दिस वन, बस अगर मैंने टेबल पे रखा हुआ है तो रीजन इज व्हाट? अगेन अब आप क्या देख रहे हैं? अब ये जो कलर वेवलेंथ आपकी आईज में जा रही है और जो कलर वेवलेंथ इससे आपकी आईज में जा रही है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आपको पता चलता है कि ये वाला और ये वाला, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अगर मैं आपसे कहूँ बस आपको दो ग्रुप बनाने हैं तो आप डेफिनेटली कौन से दो ग्रुप बनाना पसंद करेंगे? ये दो ग्रुप या ये दो ग्रुप? तो आप ये दो ग्रुप बनाएंगे।
ठीक है, तो मैंने आपको कोई भी पैरामीटर नहीं दिया, कुछ नहीं, तो आपका मतलब आप समझिए। तो ये क्लस्टरिंग जो प्रोसेस है, ये क्लस्टरिंग हम शुरू से, जब से हमने खुद डेवलप होना शुरू किया है, तब से ये क्लस्टरिंग हम करते आ रहे हैं। ये तब से हम क्लस्टरिंग करते आ रहे हैं, बचपन से हम लोगों ने क्लस्टरिंग ही सबसे पहले सीखी थी। हमें चीज़ों के नाम नहीं पता थे, लेकिन हम चीज़ों को अलग कर पाते थे। और अलग करते वक्त हम क्या ध्यान रखते थे कि जिस चीज़ को हम दूसरे से अलग कर रहे हैं, उन दोनों के बीच के फीचर्स के डिफरेंस को हम कैलकुलेट करते थे। इसको बोलते हैं डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उस डिस्टेंस के बेसिस पर हम कहते हैं कि ये इससे अलग है या ये इसके सिमिलर है। जब वो डिस्टेंस हमारे थ्रेशोल्ड के बराबर होती है, कम होती है, देन वी से या इट इज़ वेरी सिमिलर टू इट, ये इसके सिमिलर है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे पूछूं, ये कलर मेरे कर्टेन से मैच कर रहा है या मेरा शर्ट का कलर कर्टेन से मैच कर रहा है, तो ओबियसली आप कहेंगे कि शर्ट का कलर कर्टेन से मैच कर रहा है, ये कलर मैच नहीं कर रहा। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या मेरा कर्टेन का कलर और मेरी शर्ट का कलर सेम है, तब आप आंसर देंगे नहीं, दोनों कलर डिफरेंट है। तो ग्रुपिंग में आप इसको इसमें रखेंगे, लेकिन स्टिल यू नो दैट कि इन दोनों के फीचर्स के बीच में एक डिफरेंस है। दैट इज़ वॉट द इम्पॉर्टेंट पार्ट व्हेन वी डू फॉर अ क्लस्टरिंग। तो आज सेकंड यूनिट हम लोगों ने स्टार्ट की है। सेकंड यूनिट कम्प्लीटली क्लस्टरिंग बेस्ड है। हम और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स और इनकी प्रोसेस और वेज लेके आएंगे कि कैसे क्लस्टरिंग करते हैं लेटर ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप सो। So machine learning techniques, validation techniques, principal component analysis, dimensionality reduction, and what is clustering is clear to you all. If you still feel something that need to be discussed, please discuss. If all okay, so that is available on the recording. You may see that recording. The slides I was showing that will be available on the link. आपके ग्रुप में एक लिंक है, उस लिंक पे ड्राइव है और ड्राइव में वहाँ पर ये सारा डेटा अवेलेबल है, तो आप वहाँ से इसको एक्सेस भी कर सकते हैं। सो बाय दीज वर्ड्स, थैंक यू फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस, थैंक यू। Thank you, sir.